Okay. So first of all, as you know, when we smile when we are happy. जब हम खुश होते हैं तब हम स्माइल करते हैं. If our teeth are white and shiny, जब हमारे teeth white और shiny होते हैं तो फिर हम स्माइल हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है. Okay. So the teeth are the external part of our body. ये हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट होता है. That performs many functions. जो many functions, बहुत सारे functions को परफॉर्म कर रहा है. It is important to keep our teeth healthy and free from germs. ये मतलब important है कि ये जो हमारे teeth है वो healthy रहे. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे teeth healthy रहे और germs free रहे. Okay. So next is the let's start this filling the blanks that help us to dash. Teeth help us to dash and dash food. Help us to speak and chew food. Okay. chew food. food को ये हमारा teeth का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो teeth से रिलेटेड ही सारे filling the blanks है. तो teeth help us to speak and chew food. Okay. must be kept clean by brush. Teeth must be kept clean by brush. Teeth help us to sing songs. songs को गाना गाने के लिए भी कौन हेल्प कर रहा है? हमारी teeth. teeth are an dash body parts. teeth are an important body parts. ठीक है. next is the parts of a tooth. now let's start our today's topic is parts of the tooth. ठीक है. so this is the second chapter of the in the EVS book of class 4. Okay. so the part of the let's start the part of the tooth. this lecture from part of the tooth. Okay. teeth are present inside our mouth. जो teeth है वो हमारे mouth के अंदर present होते हैं. they grow from our jaw bones. ये हमारे jaw bones के ऊपर होते हैं. jaw means जबड़े को कहते हैं. Okay. वहाँ की bones के ऊपर grow होते हैं which are covered by gums. जो किससे covered होती हैं? gums से. every person has two set of teeth. first is the permanent temporary teeth and second is the permanent teeth. For temporary teeth is also known as milk teeth which are grow in the
Dentine protect the pulp. So dentine is the largest part of the tooth. Okay, जो dentine वाला हिस्सा है हमारा, this is the largest part of the tooth and it protect the pulp area. Okay, where nerves and blood vessels run. Okay, जहाँ पे nerves and blood, where we found nerves and blood vessels, the dentine protect the pulp area. Okay, and support the enamel. और ये enamel को support करता है. Where is enamel? This is the enamel. Enamel को भी support कर रहा है और ये pulp area को भी protect करता है. Which part of the teeth? Dentine. Okay. Next देखते हैं. Next, it also protect the pulp, which is the innermost part of the tooth. सबसे last में आपको कौन सा part है? teeth का कौन सा part मिलेगा? pulp. This is the soft part of the tooth. Most soft part and innermost part of the tooth. Next क्या कह रहे थे? Soft pulp contains the nerves and the blood vessels that nourish the tooth. तो soft pulp है क्या कर रहा है? Nerves को contain कर रहा है and blood vessels को contain कर रहा है. That nourish the tooth, जो हमारे tooth को nourish कर रहा है पोषक तत्व से. जितने भी हमारे tooth को nutrients की जरूरत होती है वो किसके द्वारा जा रहे हैं? pulp, nerves and blood vessels के द्वारा. ठीक है, तो कहाँ में मिलेंगे आपको nerves and blood vessels? pulp area में, in the tooth. Okay, तो सबसे पहले crown is the white and shiny part of the tooth and roots is where is located in the gum area of the tooth. ठीक है. Next is the cementum is the hardest part substance of the tooth. Okay, so next चलते हैं हम. The nerves and present in the pulp are responsible for sending and receiving signal from the brain. जो इसके अंदर blood vessels है वो nourish कर रही है tooth को और जो nerves है वो brain से जो भी signal है वो यहाँ तक पहुँचाती है. ठीक है, receive and send करने का काम nerves का होता है. जो हमारे tooth के अंदर nerves and blood vessels दोनों ही present होती हैं और वो pulp area में मिलेगी आपको. ठीक है, like आपके दांत में teeth में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये मैसेज ब्रेन तक कौन लेकर जा रहा है? नर्व्स लेकर जा रही हैं. और ये नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके पल्प एरिया में. टूथ के पल्प एरिया में ये नर्व्स प्रेजेंट है. ओके, द नर्व्स प्रेजेंट. ओके, अ हेल्दी टूथ इज हेल्ड फॉर्मली टू द जॉ बोन्स एंड बिटवीन द गम्स बाय अ सब्सटेंस कॉल्ड सीमेंटम. जो हेल्दी टूथ होता है बिटवीन द गम्स एंड जॉ बोन्स वो क्या कहलाता है? सीमेंटम कहलाता है. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द सीमेंटम. जो जॉ बोन्स और गम्स के बीच वाला जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज सीमेंटम. नेक्स्ट इज जस्ट लाइक सीमेंट द फंक्शन ऑफ सीमेंटम इज टू बाइंड द टूथ एंड गम्स टुगेदर. जैसे कि सीमेंट का काम होता है बाइंड करने का, जोड़ने का, ईंटों को, ब्रिक्स को जोड़ने का काम करता है वो. सेम ऐसे ही सीमेंटम का भी काम है. दैट्स व्हाई इसका नाम सीमेंटम रखा गया है, जो ये टूथ और गम्स को जोड़ता है आपस में. ठीक है, बाइंड करता है, अटैच करता है. नेक्स्ट अदर इट इज आल्सो हार्ड बट नॉट एज हार्ड एज द enamel. दिस सीमेंटम इज आल्सो हार्ड सब्सटेंस. ये भी हार्ड होता है बट इतना नहीं कि enamel जितना हार्ड. ठीक है, जितना enamel हार्ड होता है उतना हार्ड नहीं होता, बट दिस इज आल्सो द हार्डेस्ट सब्सटेंस. नेक्स्ट आवर टंग हेल्प्स फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं. आवर टंग हेल्प्स पुश द फूड chewed by the teeth into the esophagus. ये क्या कह रहा है कि जो हमारी टंग है वो किसमें हेल्प कर रही है? फूड को चीव करने में टीथ के द्वारा. ठीक है, एसोफेगस तक पहुंचाने में. इट आल्सो हेल्प अस टू स्पीक. तो टीथ की हेल्प से हम अपने फूड को चीव कर पाते हैं और ये एसोफेगस में पहुंचा पाते हैं. टीथ इज आल्सो हेल्प अस टू स्पीक. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टीथ. Okay, we have 4 different type of teeth. Each type is different shape and perform different function. हमारे
help us bite or cut food into smaller pieces, just like a pair of scissors. ठीक है, ये pair of scissors की तरह जैसे कि सीजर का वर्क होता है, सेम ऐसे ही हमारे इंसीजर टीथ का भी वर्क होता है। कट और बाइट में यूज होते हैं ये। किसी भी जैसे एप्पल को आप बाइट करोगे और उस एप्पल को बाइट करके खाते हैं तो उसमें कौन सी टीथ का यूज होगा? इंसीजर। नेक्स्ट इज द कैनाइन। The canines are the sharp and pointed teeth next to the incisor. जो कैनाइन है वो कैसे होते हैं? शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं और these are located just after incisor. Okay, incisor के बिल्कुल बाद आपको कैनाइन्स मिलेंगे। They are sharp and pointed teeth, जो कि फोक दिखाई दे रहा है, फोक जो की तरह होते हैं। They are 4 canines, 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. Okay, they are sharp and pointed. ये कैसे होते हैं? शार्प होते हैं and pointed होते हैं and help us to tear food into pieces. ये किस में हेल्प कर रहे हैं? फूड को टेयर करने में, पीसेस में कन्वर्ट करने में। ओके, दे वर्क लाइक अ फोक। फोक के जैसे, जैसे कि फोक दिखाई दे रहा है, इस फोक के जैसे ही कैनाइन का यूज होता है। नेक्स्ट टीथ इज प्रीमोलर। नेक्स्ट टू ईच कैनाइन, ईच पहले हमारे सबसे पहले फर्स्टली इंसीजर होते हैं, इंसीजर के जस्ट बाद कैनाइन, उसके जस्ट बाद प्रीमोलर। ठीक है, सभी तरफ जहां पे भी कैनाइन होंगे उसके जस्ट बाद प्रीमोलर आ जाते हैं। देयर आर 2 प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स होते हैं इन ईच। वी हैव 8 प्रीमोलर्स, 2 इन each side, left side 2 in upper jaw and right side 2 in upper jaw, left side 2 in lower jaw, right side 2 in lower jaw. ओके, तो ये 4 होते हैं, 4 अपर जाव में होते हैं, 4 लोअर जाव में होते हैं। टोटल 8 टीथ होते हैं ये हमारे पास। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट ऑन टॉप्स। ठीक है, टॉप से ये ब्रॉड और फ्लैट होते हैं, हेल्प टू क्रैक फूड। और ये किसमें हेल्प कर रहे हैं? फूड को क्रैक करने में। इनटू फाइन पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में क्रैक करने में ये हेल्प करते हैं एंड हेल्प चीव देम। और ये किसमें हेल्प कर रहे हैं? इसको चबाने में भी हेल्प करते हैं। दे वर्क लाइक अ नेल कटर। ये कैसे काम कर रहे हैं? नेल कटर की तरह काम करते हैं। ओके, जैसे कि नेल कटर होता है, इस तरीके से हमारे प्रीमोलर काम कर। जैसे कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट दे भी रखा है और इसको कैसे ये क्रैक करने में, इसको फोड़ने में हेल्प कर रहे हैं हमारे प्रीमोलर टीथ। ओके, और इनकी शेप भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, किस तरह की होती है ये। ऊपर से टॉप से ये कैसे होते हैं? ब्रॉड, चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्रैक करने में हेल्प करते हैं फूड को। नेक्स्ट इज द लास्ट टाइप ऑफ टीथ इज द मोलर। मोलर आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलर। मोलर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जस्ट प्रीमोलर के बिल्कुल पीछे। ओके, लास्ट में। एंड आर बिगर एंड वाइडर देन देम। और ये प्रीमोलर से ज्यादा बड़े भी होते हैं और वाइडर भी होते हैं, चौड़े भी होते हैं। ठीक है, वी हैव 12 मोलर्स। और हमारे पास माउथ में कितने मोलर्स होते हैं? 12 होते हैं। 6 इन अपर जा एंड 6 इन लोअर जा। 3 होते हैं इस साइड। दे हेल्प अस ग्राइंड मींस पीसना। आवर फूड, हमारे फूड को ग्राइंड करने में ये हेल्प कर रहे हैं। मेक देम इजी टू स्वेलो, ताकि हम फूड को आसानी से निगल सके। मोलर्स वर्क जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ मोर्टर एंड पेस्टल्स। ठीक है, यूज फॉर प्रेसिंग हर्ब्स इनटू द पेस्ट इन द किचन। ये मतलब पीसने के काम आता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक पेस्ट बनाया जा रहा है, जैसे कि हर्ब्स का पेस्ट बनता है किचन के अंदर, सेम ऐसे ही मोलर्स का यूज होता है हमारे टीथ में। और ये नंबर में कितने होते हैं? देयर आर 12 इन नंबर्स, 6 इन अपर जा, 6 इन लोअर जा। ओके, दे आर मोर बिगर एंड वाइडर देन ऑल टीथ। ठीक है, सभी टाइप के टीथ से ये ज्यादा बिगर और वाइडर होते हैं। एंड एडल्ट हैज 2 पेयर ऑफ इंसीजर। एडल्ट के 2 पेयर होते हैं इंसीजर के। ओके, 1 पेयर ऑफ कैनाइन, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर्स एंड 3 पेयर ऑफ मोलर्स। ओके, 2 पेयर ऑफ इंसीजर मींस के टोटल 8 टीथ हो गए, 4, 8 एंड 12। ओके, द एवरेज एडल्ट हैज 32 टीथ इन ऑल। तो जो एवरेज जो एडल्ट होता है उसके कितने, ह्यूमन बीइंग के कितने टीथ होते हैं? 32। मेंटेन
germs start growing around it. तो क्या होगा, इसके चारों ओर germs स्टार्ट हो जाएंगे, कीटाणु पैदा होने लग जाएंगे, ठीक है। These germs feed on the sugar present in the food particles. These germs क्या कह रहा है कि ये germs फिर क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स के अंदर जो भी शुगर होता है उससे ये फीड करने लग जाते हैं, उसको खा लेने लग जाते हैं। While they do this, they produce a kind of acid. और जब ये ऐसा करते हैं तो ये हमारे टीथ में एक एसिड की तरह बन जाते हैं, ठीक है। This acid can destroy the enamel. और ये एसिड क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एसिड बना और ये एसिड अब हमारे इनेमल पार्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। Spoil the gums, cause bleeding and create holes in the teeth. A hole in a tooth is called cavity. तो ये इनेमल पार्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। Where is the enamel part of the teeth? This is the enamel. जो ये white part है इसको harmful इस पार्ट को ये डिस्ट्रॉय करेगा। इसके बाद ये धीरे धीरे पल्प तक चला जाएगा, ठीक है, और ये हमारे दांत में होल्ड कर देगा। नेक्स्ट आता है और इसे क्या बोला जाता है, कैविटी। दिस इज कॉल्ड कैविटी। हाउएवर इसी प्रकार germs do not make cavity in teeth right away, ठीक है। तो अगर ये इसी तरह से ये कह रहा है कि इसीलिए जो germs है वो हमारे दांतों में कैविटी ना करे, they first attack the enamel and form the sticky yellow coating. ये सबसे पहले enamel के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, बिल्कुल सीधे तरीके से टीथ के अंदर नहीं जाता है। सबसे पहले ये enamel पे अटैक करेगा, येलो कोटिंग बनाएगा, एक पीले रंग की कोटिंग बन जाती है इसके ऊपर, कार्ड प्लैक। इसको क्या कहा जाता है, प्लैक ऑन द टीथ। इफ दिस प्लैक इज नॉट रिमूव, अगर हमने ये प्लैक रिमूव नहीं किया, येलो कोटिंग जो टीथ के ऊपर दिखाई दे रही है, अगर इसे नहीं हटाया गया, द germs can get inside the teeth and destroy the dentine and the pulp. जो germs है वो क्या करेगा, वो टीथ के अंदर चला जाएगा और पल्प और डेंटाइन को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये पल्प तक पहुंच जाएगा फिर ये येलो पार्ट, ठीक है। This acid produced by the germs can also break the cementum. ये एसिड जो germs के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, this acid ये किसको नुकसान पहुंचा रहा है, cementum, and can lead to the tooth decay. और फिर क्या हो जाएगा, हमारे दांत सड़ जाएंगे, ठीक है, tooth decay means दांत सड़ जाएंगे, ओके। The tooth decay can result in sore and bleeding gums. इसमें क्या होगा, दर्द होगा और मसूड़ों में से ब्लड आने लग जाएगा। टूथ हमारे दांतों में दर्द होगा, टूथ लॉस, दांत टूट जाएंगे, बैड ब्रेथ, स्मेल आएगी हमारे दांतों में से, एंड इंडाइजेशन, और हमारा फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। Hence it is essential for us to take care of our teeth. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दांतों की केयर करें। We must keep them clean and healthy teeth. Okay, keeping teeth healthy. तो हम अपने दांत को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसके लिए some tips है यहाँ पे, उसे भी देख लेते हैं। Here are some important rules for taking care of teeth. यहाँ पे कुछ important rule है। brush at least twice a day. दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, in the morning and at night. Okay. To have clean and white teeth. अगर आपको clean और white teeth चाहिए, you must follow these few simple steps. तो आपको ये कुछ simple steps को follow करना है। brush the upper jaw, brush the lower jaw, brush the chewing surface. this side से ये पहले सबसे पहले upper jaw को brush करना है, फिर lower jaw, then your chewing surface, जो chewing surface है, softly clean the tongue with the brush or the tongue cleaner. tongue को भी आपको tongue cleaner की हेल्प से ब्रश करना है। मसाज योर गम्स विद योर फिंगर टू कीप देम, अपने गम्स की मसाज करनी है अपनी फिंगर से ताकि वो हेल्दी रहे। यूज डेंटल फ्लोस टू रिमूव द फूड पार्टिकल। डेंटल फ्लोस क्या होता है, वो दांत में से निकालने के लिए एक स्टिक आती है जिससे कि आप फूड पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हो। टैप बिटवीन योर टीथ एट लीस्ट वंस अ डे, ठीक है, जो दिन में एक आधी बार जो के फूड में स्टक हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ईटिंग टू मच स्वीट्स। सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करना है और बहुत ज्यादा स्वीट्स भी नहीं खाना है। ईट मोर ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, बहुत ज्यादा ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेनी है। चीविंग शुगर केन
करते हैं, ठीक है, नीम की ब्रश से अपने टीथ को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रोब। माइक्रोब वो होते हैं जो बहुत ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते। सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं इन्हें। इतने छोटे होते हैं ये कि हमें हमारी नेक्ड आई से ये नहीं दिखते हैं। जैसे लाइक माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं। These are present in the air, water and soil। ये एयर, वाटर और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। They live in human bodies too। ये ह्यूमन बॉडीज में भी प्रेजेंट होते हैं। Microbes cannot be seen with naked eyes। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देते हैं। We need a microscope to see them। इनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? माइक्रोस्कोप की। ओके, हार्मफुल माइक्रोब्स that cause disease are called germs। जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो जिसे डिजीज होती है उन्हें जर्म्स कहा जाता है। ओके, माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं, गुड माइक्रोब्स भी होते हैं एंड बैड माइक्रोब्स भी होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दिस माइक्रोब्स इन डिटेल। ओके, माइक्रोब्स आर ऑफ 4 टाइप: बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ठीक है, तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स: गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स and they change milk to curd। like good bacteria जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए good bacteria का यूज होता है। harmful bacteria cause disease such as typhoid, tuberculosis, TB, okay, and pneumonia। the bacteria present in our mouth cause tooth decay। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर होता है उसे वो क्या करता है, कौन सी बीमारी होती है उसे? टूथ डिके। वायरस इन एयर cause disease such as चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और अभी एक रिसेंटली जो वायरस आया है कोरोना। दिस इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ वायरस। ठीक है, प्रोटोजोआ cause food poisoning, diarrhea, nausea after eating contaminated food। they also cause malaria। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है, डायरिया की डिजीज हो जाती है, हमें वॉमिटिंग आती है, ठीक है, और लूज मोशन हो जाते हैं इसके अंदर, इस डिजीज में। एंड मलेरिया इज आल्सो caused by प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ माइक्रोब्स। प्रोटोजोआ these are 4 microbes। फंगी ग्रो ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो फंगी होता है ये कहाँ पे ग्रो करेगा? प्लांट्स और एनिमल के ऊपर ग्रो करेगा। ईस्ट इज अ फंगी। ईस्ट क्या है? एक फंगी दैट हेल्प्स मेकिंग ब्रेड एंड बन सोप। ईस्ट एक तरह का फंगी होता है जिसकी हेल्प